السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عزیزی اور میرے معزز مہمان۔ اور ناظرین، آج اپنے ایک متنازعہ بیان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہندوستان سے لائن پر موجود ہوں گے ہندوستانی وزیر دفاع منوہر پاریکر۔ نمستے، ہم بہت آبھاری ہیں کہ آج آپ نے ہمیں لائن پہ لیا ہے۔ بتائیے کیا بات کرنی ہے؟ جو بات کرنی ہے جلدی جلدی کریں، ٹائم نہیں ہے۔ بات کرنی آپ کو لائن پہ لے کے تو لائن میں کرنٹ چھوڑنی ہے۔ پاریکر صاحب جی، یہ آپ نے کیا بیان دیا ہے؟ آپ ایک بڑے ملک کے، ایک بڑی جمہوریت کے وزیر دفاع ہے، کتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ پاکستان جانا جہنم جانے کے برابر ہے۔ منوہر صاحب، یہ ہمارے اینکر پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا بیان دیا ہے، کیا بات کی ہے۔ اگر میں پوچھتا تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے کیا بونگی ماری ہے۔ دیکھیں، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، ہندوستان کا رکشا منتری ہوں۔ واہ واہ واہ، منتری تو میرا حال ہے وزیر کو کہتے ہیں رکشا منتری۔ آپ ہندوستان میں رکشا چلاتے ہیں جی؟ جڈا کہہ گئے چھاتے پہ کے رکشا چلاتا ہونا۔ اس طرح کا رکشا ڈرائیور سارے رستے دعا کرتا جاتا ہے، رام کرے سواری اپنا سامان بھول جائے۔ بیگ بھی مہنگا لگ رہا ہے اس کا، لازمن اس میں موبائل فون بھی ہوگا، اور اگر کوئی گولڈ کا سیٹ نکل آیا تو اس مہینے بچی بھی آ دوں گا۔ بارش ہو رہی ہے، چلو بیگ نہ صحیح کم از کم چھاتا بھول جائے۔ لگتا ہے آپ نے اینکر صاحب ان بچوں سے ہمارا تعارف ٹھیک نہیں کروایا۔ نہیں جی، تعارف ہمارے اینکر نے کرایا آپ کا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ مسلمانوں کے بڑے سخت خلاف ہیں، بلکہ جب وڈید قریب آتی ہے تو آپ گلی میں نکل کے بندھے ہوئے بکروں سے ٹکرو ٹکری ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ تو بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ آپ کسی سرجن کے پاس سینگ لگوانے بھی گئے تھے۔ یہ کیا فضول گفتگو شروع کر دی ہے بھائی؟ بہت اچھے، یعنی آپ ہمارے پاکستان کو جہنم کہیں تو ہم کیا آپ کو اٹھ کے ہار پہنائیں گے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے ملک میں بم پھوٹتے ہیں، سازشیں ہوتی ہیں اور انتہا پسندی ہے۔ بھائی، انتہا پسندی جیسی آپ کے ملک میں ہوتی ہے پوری دنیا میں نہیں ہوتی۔ آپ کے ملک میں کون سا سر اٹھ کے ایک دوسرے کو جلیبیاں کھوا رہے ہوتے ہیں؟ پاریکر جلیبیوں سے صاحب، مجھے یاد آیا پا جنید، یہ مجھے پتہ چلا ایک دفعہ شیرے والی کڑائی میں گر گئے۔ ان کو دکاندار دھونے لگا تو کہتے ہیں رہنے تو یار، مجھ پہ مکھیاں بیٹھیں گی، مجھے بڑا سکون ملے۔ نہیں، شیرے سے تو اس بندے کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ انتہا پسندی کا، ذاتی انتہا پسندی کا یہ عالم ہے کہ یہ گوا کے 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں جی، اور اس بندے نے کم از کم جو 51 سرکاری سکول تھے وہ وہاں کی جو انتہا پسند تنظیم تھی جو خالصتاً ہندوتوا کی تعلیم دیتے تھے، اس این جی او کے سپرد کر دیے تھے 51 سرکاری سکول۔ اور میں نے یہ بھی سنا کہ 52 سکولوں میں ٹلی بجانے بھی خود جاتے تھے۔ یہ سب کچھ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، تو پھر ہم جاتے ہیں؟ نہیں، جاتے کہاں ہیں؟ اپنے بیان کی وضاحت کریں۔ آپ اپنا منصب دیکھیں اور اپنا بیان دیکھیں۔ بھائی، بتایا تو ہے کہ آپ کے ملک میں انتہا پسندی ہے۔ پھر انتہا پسندی تو باہر ہونے کی نہیں ہے، وہ تو ٹی وی بھی ڈرتا ہے بھائی۔ بھائی، کہوں گا میں یہ کہ آپ کے ملک میں انتہا پسندی ہے، بم پھوٹتے ہیں۔ سانو کہی جاندے بم پھوڑتے ہیں، تہاڈا راجیو گاندھی سائیکل تو ٹکے مریا سی، یا اندرا گاندھی دے متھے چوٹدی چڑی وجی سی، انہوں گولیاں وجیاں سن، تہاڈے اپنے لوگاں نے ماریاں۔ بھئی، یہ آپ لوگ اپنے پروگرام میں جنات بھی بلاتے ہیں؟ آپ کو تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ پچھلے 3 برسوں کے دوران آپ کی شدید خواہش اور کوشش کے باوجود 11,000 سے زیادہ عسکریت پسندوں نے بلوچستان میں ہتھیار ڈال دیے۔ کیا کہا؟ 11,000 سے زیادہ لوگوں نے عسکریت کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ آپ کو آئے گی بھی نہیں۔ چلو آواز نہیں آ رہی تو شرم تو آ رہی ہے نا۔ آپ نے ایک دن کہنا کہ صاحب ہی نہیں آ رہا۔ ہیلو، میرے خیال لائن کٹ گئی۔
اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ہندوستان کی حکومت شدید پریشانی کا شکار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی حکومت نے پچھلے 2-4 سال کے دوران بلوچستان کے زخموں پہ جو پھاہا رکھنے کی کوشش کی ہے، جو کچھ اقدامات کیے ہیں، اس کے اب خاطر خواہ نتائج آہستہ آہستہ برآمد ہونا شروع ہو گئے۔ سیدھی بات، ہم بار بار اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو ہم نے اس پٹڑی پر پہلا قدم رکھا ہے اور ابھی یعنی ان کا احساس محرومی ہمارے بلوچ بھائیوں کا اتنا طویل ہے، اتنا زیادہ ہے کہ ابھی بہت وقت لگے گا ان کے زخم بھرنے میں، لیکن ہم نے کم از کم رائٹ ڈائریکشن میں جانا شروع کر دیا۔ ہاں جی، اور یہ زخم اتنے بڑے اس لیے ہیں کہ یہ جو ہندوستان ہے نا، انہوں نے باقاعدہ ان زخموں کو کھرچا ہے، ہاں، بار اسے بار مزید بڑھانے کی کوشش بار، لیکن جو فیکٹس ہیں، جو اعداد و شمار ہیں، وہ الحمدللہ ہمیں ایک نئی صبح کی نوید دے رہے ہیں۔ سچی بات ہے۔ یہ آپ لوگوں کو غلط لیکچر دے رہا ہے۔ اور پھر آ گیا یہ یہ گیا کتے سی؟ یہ میرا خیال ہے باہر دودھ ڈلا آیا سی، تو دودھ لین گیا سی۔ او بھائی میرے میں کہیں نہیں گیا تھا، یہیں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہے۔ او بھائی میں کوئی غلط گائیڈ نہیں کر رہا، میں جو اعداد و شمار بتانے جا رہا ہوں وہ میرے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ IMF کے ہیں، وہ ورلڈ بینک کے ہیں، وہ عالمی اداروں کے ہیں۔ دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی علیحدگی کی تحریک چلتی ہے وہ اس کے بیج بوئے جاتے ہیں، اس کی بنیاد میں وہاں پہ معیشت ہوتی ہے، ظاہر ہے معاشی محرومی ہوتی ہے۔ ہم نے اس کی طرف خاطر خواہ توجہ دی ہے، جس کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 2004 میں بلوچستان میں جو غربت کی شرح تھی وہ 79% تھی، جو الحمدللہ اب کم ہو کے 39% رہ گئی ہے، دیگر صوبوں کے کم و بیش برابر آ رہی ہے۔ ان کے جو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے اٹھ رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ اور سن رہے ہیں پادا بڑے ہمارے ہاں حالات بڑے بہتر اللہ کے فضل سے ہو رہے ہیں، اور آپ کو جو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی کا سیاپا پڑا ہوا ہے نا، اس کے لیے آپ اپنا نام اب پیاری کر بدل کے تیاری کر رکھ لیں۔ اب آپ اپنے سیاپے لپیٹنے کی تیاری کریں۔ اس بندے نے پہلی بار اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا۔ نہیں جی، شکل سے منوس لگ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگ میرا اپہاس کر رہے ہیں۔ بہت اچھے، آپ ہمارے ملک میں سازشیں کریں اور ہم اپہاس بھی نہ کریں۔ اپہاس کا والا مطلب کیا ہے یار؟ مجھے تو نہیں پتا، البتہ یہ تڑفا ہے لائمن کو میدار مطلب ہی ہوگا۔ وہ گلہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بات اچھے، میاگنا آئے تو اور کیا آپ کو ہم سلمان خان کہنا شروع کر دیں۔ اچھا، پاریکر صاحب نے پہلی بار اس طرح کا کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا۔ یہ وہی پاریکر صاحب ہے، ہندوستانی میڈیا میں شائع شدہ رپورٹس کے مطابق انہوں نے ایک بار غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کم کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایٹم بم پھینک دیا جائے۔ اپنے ہندوستان کے بارے میں اس شخص نے بیان دیا یار تھا۔ تیری مہربانی پا جنید، اس کو ٹی وی سے باہر نکالو یار، کوئی ٹی وی کا مستری بلا لو یار، اس کو باہر نکالے تھوڑی دیر۔ دیکھو نا ذرا کیسا ظالم آدمی ہے کہ اپنی آبادی کٹانے کے لیے انسان مار دینے چاہتا ہے۔ اس طرح تو بندہ گھوڑے تے پٹھا بہ جاوے نا تو اتر کے سدھا ہونے کی بجائے نوکر کو کہہ رہا ہوتا ہے یار گھوڑے دا منہ وڈ کے ادھر لا دے یار۔ یہ تو ایسا بیوقوف آدمی ہے، اپنی برات واپس لے چلا تھا لڑ کے، کہتا ہے میں لاڑا ہوں اور مجھے بھی کوئی بوتل وہ جی اپنے تے چھڈو، یہ تے ایڈا لالچی اپنے منڈے دی جان واپس لے گیا سی۔ کیوں جی؟ انہاں جیز دتا گھٹ تے بہانا کی لایا، کہندا واجے والے نے وہ گانا کیوں نہیں بجایا جڑا میں کیا سی؟ یہ آپ میرا اپمان کرنا بند کریں، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جی جانتے ہیں، دلیر تو اتنا ہے، یہ ایک دفعہ خون ٹیسٹ کرانے گیا ہسپتال، وہ سرنج لگانے لگے ہیں تو کہتا ہے جی ایک منٹ ٹھہر جاؤ، جیب میں سے مچھر نکال کے کہتا ہے انہیں میرا خون چوسے ہے، ادھر چو کٹ لو۔ باز آؤ گے یا بتاؤں میں؟ بتانا تو تین مدرسہ پھج گیا اور تین مدرسہ سریے سے جلانے کے لیے کہہ رہے تھے، یہ واقعی بلوچستان بدل رہا ہے؟ نہیں بدل رہا ہے، کنسیڈریبلی بدل رہا ہے۔ مطلب ابھی تم دیکھو کہ بلوچستان میں جو بے روزگاری کی شرح پچھلے 3 سال میں 11% کمی ہے۔ اچھا، اور یہ سی پیک کے نتیجے میں انشاءاللہ 4 لاکھ سے زیادہ بلوچ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ اور اگر ہم تعلیم یا شرح خواندگی کو دیکھتے ہیں تو سالانہ 4% کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے بلوچستان میں۔ واہ جی واہ، اس کا مطلب آل اوکے ہے؟ نہیں، آل اوکے بالکل نہیں ہے، پہلے بھی کہا ہے آل از ناٹ اوکے ایٹ آل، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔
कई दहाइयों पर मुश्तमिल महरूमियां हैं जिस पर अभी उनके जख्मों पर पहला फाहा रखा गया है। और ये जो पारीकर साहब और इनकी कंपनी है यही नहीं चाहती कि पहला फाहा रखा जाए, इसलिए ये शोर मचा देते हैं। सही तुम कहते हो, इनको सूली इसलिए उठ रहे हैं कि वहां पे हालात ठीक होने शुरू हाँ, हो। ठीक होना शुरू हुए, बिल्कुल अभी आगाज है, अभी एक लंबा सफर है। और मेरा ख्याल हमारी हुकूमत को भी, अस्करी क़यादत को भी, इदारों को, सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को एक काम पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बड़े शहरों में और बड़े शहरों को आपस में मिलाने वाली शाहराहों पर लॉ एंड ऑर्डर अभी तक अप टू द मार्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो शहरी सहूलतें हैं ना वो इंतहाई कमयाब है। पीने का पानी जो है इस वक्त कोयटा शहर देख लो, गवादर देख लो, जिसको हम दुबई बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, वहां पे आलम यह है कि पानी, पीने का पानी के जो केन है वो चोरी होने पे FIRs दर्ज हो रही हैं। वहां पे पेट्रोल सस्ता और पानी महंगा है। ओए होए होए, नीचे पीने वाला पानी है उसकी तरफ तो सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मथे ते चमकने वाल मेरे बनड़े दे, मथे ते चमकने वाल मेरे बनड़े दे, लाओ नी लाओ एनू शगना दी मेहंदी, लाओ नी लाओ एनू शगना दी मेहंदी, मेहंदी दे रंग होए लाल मेरे बनड़े एक मिनट भाई, उनको गाने सुनाने के लिए नहीं बुलाया। और सीमेंट का ट्रक लाना है यार इनकी नई नई शादी हुई है, हम जानना चाहते हैं कि जो शादी के दौरान और उससे पहले रिश्ता तलाश करते हैं जो माशरती और माशी मसाइल दरपेश आते हैं वो क्या है। जी, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपकी शादी की। खैर मुबारक है, बहुत शुक्रिया। खैर खैरियत से आप इस फरीजे से सबकदोश हुए हैं। फरीजर नहीं है, बीवी है मेरी भाई। फरीजर नहीं कहा मैंने, फरीजा कहा है, फरीजा। हाँ हाँ, फरीजे से हो गया हूँ मैं सुबकदोश। अच्छा, तो इतनी ताखीर से क्यों? ज्यादा उम्रें लगती हैं आपकी। नहीं, वो असल में ये तो आप करना जो है तो बंदोबस्त करते करते फिर उम्र तो हो ही जाती है। ज्यादा उम्र हो गई क्यों? क्या वो बस असल में मसला यूं था कि पहले तो हम लोग सोचते थे इसके जो अब्बू है ना वो चाहते थे कि जरा रौनक मेला लगे मेरी बेटी की शादी में, तो वो उसके लिए ना हमारे पास इतने पैसे थे ना इनके पास इतने पैसे थे। तो फिर 7 साल हो गए मंगनी को, तो 7 साल बंदोबस्त करते हुए गुजर गए, मगर बंदोबस्त हो नहीं था। तो फिर इस दफा एक अक्लमंद दोस्त ने बताया इसके अब्बू को, उन्होंने कहा 14 अगस्त आ रही है उसमें शादी कर लो, रौनक मेला तो होता ही है और पैसे भी गवर्नमेंट के लगते हैं, तो 14 अगस्त में शादी कर लो और रौनक मेले में हो जाएगी। तो फिर इस 14 अगस्त को शादी हुई है हम दोनों की। तो क्या जरूरत है रौनक मेले की? सादगी से शादी कर लेते यार। इस सादगी से ही की है हमने, मगर वो देखे वो माँ बाप को ये ख्वाहिश तो होती है ना, ये दूल्हा वाले को भी और दुल्हन के माँ बाप को भी ख्वाहिश तो होती है रौनक मेला लगे हमारे बच्चों की शादी में। माँ बाप पे खाम का डाल देते हो, असल में दोस्तों यारों का इसरार होता है यार। दोस्तों का कोई इसरार नहीं था, दोस्तों को तो मैंने मना लिया हुआ था कि भाई बस बहुत हो चुकी है। क्यों जी? तो हाँ जी, रौनक इन्होंने पुट्ठी भेजी है, 2 देगा ना पकाइयां 14 अगस्त को, पता नहीं कौन कौन खा गया। तो वो मगर हो तो गई ना, रौनक मेला तो था ना, जो भी कहा गया भाई रौनक मेला चाहिए था, वो अल्लाह के फजल से हो गया। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ताखीर बहुत हो गई है मेरी तरफ से। कि आप तो अभी माशाल्लाह ठीक लग रही हैं। थैंक यू। जब मैंने घूंघट उठाया ना तो मुझे वो मंडी भाउद्दीन जाने वाली आखिरी टाइम की लारी याद आ गई। नई लारियां तो सुबह ही निकलती हैं भाई। क्या मैं ला रही हूँ? नहीं, आप लाड़ी है मेरी, मैं आपका लाड़ा हूँ, ये कहना चाह रही हूँ। और तो आप प्यारी ही लग रही हैं। अच्छा, तो सिर्फ शादी के इंतजामात में उसके अखराजात इकट्ठे करते हुए इतने साल बीत गए। हाँ, बस असल में होता ही है ना कि फिर ख्वाहिशात जितनी ज्यादा होंगी फिर ताखीर उतनी ही होगी। तो अब तो बंदिश हो गई है आसानी से आप। हाँ, तो वो हमारे चच्चा मियाँ हैं, वो हमारे बड़े अच्छे चच्चा हैं, वो अब्बा के दोस्त हैं, वो कह रहे थे ये बंदिश वाला मामला भी खत्म होने वाला है। तो 2-3 साल ये इंतजार करते हुए निकल लिए कि अभी शहबाज शरीफ ने कहा है कि भाई बंदिश भी खत्म हो जाएगी, खाने का सारा बंदोबस्त ही खत्म हो रहा है, तो शादी जब होगी तो उस वक्त कर लेंगे। वो बंदिश खत्म ही नहीं हुई। नहीं, बंदिश नहीं खत्म होगी। हाँ, वो गवर्नमेंट से नहीं खत्म हो रही, वरना इनके सामने तो जितनी मर्जी भर के रख दे बंदिश खत्म कर देती है।
हाय, तो आप कौन से चाय के चम्मच से खाना खाते हैं? पूरी हंडिया ही आगे रख लेते हैं। माफ कर दीजिए, इस वक्त लोग बैठे हुए हैं। नहीं, मुझसे सच ना गुलवाना यहाँ बैठ के। और लोग बैठे हुए हैं, क्या सोचेंगे? ये लोग हैं? तो और क्या? मैं तो समझी आपके रिश्तेदार हैं। अरे नहीं भाई, वो तो क्या आपके रिश्तेदार जिन्नात है? इतने अरसे तक आपने खर्चे के डर से शादी नहीं की, आप भी तो कम खर्चे से की है ना, कैसे कम खर्चा हो गया? अभी तो फिर सबने कहा कि भाई हिम्मत करें, खुद ही सब कुछ कर लेते हैं। घर में ही मौजूद था सारा बंदोबस्त, तो वैसे ही बस कह रहे थे कि अपनी शादी पे लोगों से ही काम करवाया जाए। अभी तो हमने पकवाइये को भी नहीं दिए पैसे। अच्छा। देगे वगैरह इनके वालिद साहब ने खुद ही पकाई है। अच्छा। हाँ, वो पकवाई का काम करती है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी तो बिल्कुल खर्चा नहीं हुआ। जो तंबू कनाज है उनका भी खर्चा नहीं हुआ। सामने इनके घर के नुक्कड़ पे ही है ना वो प्राइमरी स्कूल जहाँ ये पढ़ी हुई है, वहाँ के हेडमास्टर भी इनके छोटी बहन के ससुर है। अच्छा। उन्होंने कहा यही कर लो, तो वो फिर छुट्टी वाला दिन था 14 अगस्त, तो वही कर ली जाए। हाँ, बांड तक के पैसे नहीं लगे। बांड आए ना, बांड आए उधर, उन्होंने जुगत भी की बहुत, मगर पैसा कोई नहीं लिया। क्यों? वो दोनों इनके मामू थे सगे। आप हंस रहे हैं, इनका बड़ा मामू तो इतना अच्छा करते हैं, हमारी तो हंसी नहीं रुकी। वैसे छोटे वाले भी बहुत तो कर ही लेते हैं। नहीं, वो कोई पक्का नहीं करते। हमारी इतना पक्का नहीं करते। ढोलक वाली मेहती की ढोलक का भी खर्चा नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, ये इनके भाई हैं। हाँ। इन्होंने भी पैसे नहीं लिए। इन्होंने कहा बस आप मुझे साथ रख के 8 दिन रोटी खिला दीजिएगा, इतना ही बहुत है। बस एक दिन रह गया और कल के दिन ये चले जाएंगे। यकीन मानिए 500 भी नहीं लगा हमारा। स्पॉन्सर्ड शादी हुई ना ये तो। बस शादी तो ना हुई, फिर रफाई काम हुआ भाई। तू ज्यादा बकवास न कर, बाकी खर्चे कम हुए हैं। तूने तो प्लेट भर के भी खाया और साथ शाहपुर में भी डाल के लेके गया। नाज़रीन, यहाँ मिले ना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज मनवा के बात छोड़ेंगे, भरी महफिल गुरूर तोड़ेंगे, बात कहने की करके जाएंगे, राज टोकन का हम बताएंगे। रोग सर दर्द एक उलझन है, सबके सर पर सवार टोकन है, टोकन है, टोकन है। इसीलिए तो कहते हैं मियाँ, टोकन से जरा बच के, टोकन से जरा बच के, हर पेट लेके आना पड़ा सोच के समझ के। टोकन से जरा बच के, टोकन से जरा बच के, हर पेट लेके आना पड़ा सोच के समझ के। टोकन से जरा बच के, टोकन मास्टर पेंट्स, टोकन से जरा बच के, वजारत अक्लमंदी से जरा बच के। Q-Mobile X700 Pro की 2GB RAM से I update my Facebook account while I upload a picture on Instagram while I'm वैसे सर कम वसाइल के साथ शादी करना बहुत मुश्किल हो गया है। यार कम वसाइल अपनी जगह, लेकिन बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि हमने इस नेक काम को मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया। खामखा हम मुकाबले की दौड़ में शामिल हो गए, अखराजात बढ़ाने पे तुले हुए हैं हम लोग। वरना ख्वाहिश तो होती है ना, फिर क्या करें, हर आदमी की ख्वाहिश तो होती है। क्यों होती है? आपने क्या शादी की थी? सादा शादी बहुत हद तक सादा की थी। तो हमने भी अब सादा ही की है ना। दुखी क्यों हो रहे हो? इतना सादा शादी भी नहीं की, शेरवानी इतनी अच्छी पहनी है, ये तो पैसों से खरीद के पहनी है ना। ये नहीं खरीदी। हाँ, ये हमारे ससुर मियाँ ने हमें दिया है। उन्होंने किसी नवाब की देखें अच्छी पकाई थी ना, उन्होंने उनको गिफ्ट दिया था, तो उन्होंने उसी वक्त संभाल ली थी, तो ये फिर उन्होंने हमें गिफ्ट की, फिर हम पहन के उन्हीं की तरफ चले गए। यार ਤੁਹਾਡਾ अपना कुछ भी नहीं, ਤੁਹਾਡੇ 14 अगस्त ही बनती थी शादी। जलील करवा दिया ना उनके सामने। ऐसी भी कोई बात नहीं है, कभी देख लेते ना बारात, तुम्हारा रंग जर्द बढ़ जाए। नहीं, जर्द तो नहीं था, बढ़ना चेंज जरूर होता कलर तुम्हारा। क्यों जी? यकीन मानोगे, जब बारात जा रही थी तो हमारे ऊपर दोस्तों ने छट्टे लगाए थे ऐसे। नोटों के नहीं, वो 14 अगस्त की झंडियां थी ना, इकट्ठी की हुई दोस्तों ने, वो हमारे ऊपर ऐसे छट्टे लगाए उन्होंने। बिरादरी में भी जलील करवाया, अब इनके सामने भी जलील करवा रहे हो। जलील होने वाली ऐसी कौन सी बात होती है इसमें? सब कुछ खुल के बताना चाहिए सबको भाई। तो आपने खुल के बताया था। जब झूठ बोलते हैं तो फिर इस तरह के मसाइल बनते हैं। असल प्रॉब्लम ही ये है कि यकीन मानिए, ये जो 7 साल शादी रुकी रही है ना, सिर्फ इसी वजह से रुकी रही है
चूंकि इनके अब्बा ने भी ये कहा कि मेरी तो एक ही एक बेटी है और मेरे पास तो अल्लाह के फजल से बहुत कुछ है, तो हम तो बहुत धूमधाम से शादी करनी चाहते हैं। ऐसी बात है, फिर मुकाबले में आके मेरे अब्बा भी वहां कर गए, ना उनसे कुछ बन पा रहा था ना हमसे कुछ बन पा रहा था। नहीं, आप लोगों ने भी तो झूठ बोला था ना। झूठ उन दोनों ने बोला, बुजुर्गों ने। तो शामी तो हमारी आई रही, 7 साल गुजर गए थे। यही तो मसला है कि जिस रिश्ते की बुनियाद खालिसतन इत्मीनाद और इतबार पे होनी चाहिए, उसमें आप झूठ शामिल कर लेते हो। इसीलिए अब हम दोनों ने तय कर लिया कि एक दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलना, एतबार करना है एक दूसरे पे, झूठ तो कतई नहीं बोलना। फिर इन्होंने सच उगल दिया सब कुछ, इन्होंने हमें बता दिया, हमने भी इनको सब कुछ बता दिया। अच्छा चलो। हाँ, हमने भी ये बता दिया कि जो मंगनी के वक्त हमने कहा था ना हमारा घर अपना है, हमारा घर अपना नहीं है भाई, किराए पे है। ऐसी अच्छी खातून है, कहने लगी मैंने कौन सा मकान से शादी की है, मैंने तो आपसे शादी की है। फिर इन्होंने भी हमें बता दिया कि वो मंगनी वाले दिन जो हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी थी ना, जो हमारे अब्बा मियां ने कहा था कि हमारी गाड़ी है, वो हमारी नहीं थी, वो किराए पे थी। वो हमने किराए पे लाकर उधर खड़ी की थी। हमने कहा हमें पहले बता देते, हम तो उस गाड़ी के पीछे लटकती हुई चुटिया को देख के आपके बालों का अंदाजा लगाते रहे। सही कह रहा हो, झूठ का नतीजा तो फिर यही निकलता है। बड़ा जलील होता है जी बंदा, बड़ा रुस्वा होता है। यकीन मानिए हमारे अब्बा मियां ने उधर मंगनी वाले दिन भड़क लगा दी ना कि लो भाई मैं बड़ा गज वज के ते बारात लेके आवांगा। क्या बताऊं आपको, पैसे पल्ले नहीं थे गजने वजने के। फिर अब्बा गजते रहे ऊंचा ऊंचा और ताया हमारे बजते रहे। बजते क्या मतलब? शादी वाले दिन खुशी से भंग पी ली ना उन्होंने, तो फिर नशे में कदी ओदे विच वज, कदी ओदे विच वज, कदी ओदे विच वज, इसी तरह फिर गजते बजते पहुंच गए हम इनके। अपने खानदान को जलील करवा रहे हो। चले आपका भी बता के बैलेंस कर देता हूँ। हमारे वालिद साहब ने कहा था ना कि हम गज वज के आएंगे, इनके वालिद साहब ने भी कहा था आप गज वज के आएंगे तो मैं धूम धड़के से इस्तकबाल करूंगा। तो गज वज के तो आपने पहले सुन ही लिया, अभी धूम धड़का भी सुन लीजिए। जैसे वो असद अमानत अली कहा करते थे ना मरहूम के, उच्चियां लम्मियां लाल खजूरा, अब बताती हैं कि उच्चियां के में ते लम्मियां के में। वो आपने गज वज के तो सुन ही लिया है, अब धूम धड़का मुलाजा कीजिए। उन्होंने एक वीडियो सेंटर से टेलीविजन किराए पे लिया और एक सीडी प्लेयर किराए पे लिया और एक धूम फिल्म ली और अल्लाह के वो प्राइमरी स्कूल के सामने गेट पे धूम फिल्म लगा दी और 7 स्कूल की सीढ़ियां 10-15 मरतबा ऊपर गए नीचे आए, दिल उनका धड़कना शुरू हो गया। जब हम पहुंचे तो मेरे अब्बा से कहने लगे अफजल मियां देख लो धूम धड़के से इस्तकबाल किया है, वो रही धूम फिल्म और इधर हाथ रख के देखो कैसे धड़का लगा हुआ है। जितना मर्जी झूठ बोलो खुल तो जाता है ना। जी हाँ, झूठ से तो इंसान जलील ही होता है, पर खुशियां तो बंदा दिल से मनाता है, उसके लिए पैसे की तो जरूरत ही नहीं होती। उसके लिए तो दोस्त अहबाब प्यार करने वाले ही बहुत होते हैं भाई। साडे यार ने बदले से, ओ साडे यार ने बदले से, रोले पे चार जुबे ते चौका विच। बस बस बस, उठना नहीं उठना नहीं। क्या हुआ, लड़ पड़ती है? नहीं, वेल पकड़ने चली जाती है। ते चौका विच पैर लुटिया, ते चौका विच पैर लुटिया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जनाब, बात तहजीबी का मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मौके की मुनासबत से एक मेरे येन में आई है बात तहजीबी, उसका जिक्र करना चाहता हूं। लेट हो गया तो टाइम गुजर जाएगा, फिर नुकसान हो जाएगा। वो बात तहजीबी ये है कि ये जो स्टूडेंट्स नई क्लासों में दाखिल हुए हैं, नए दाखिले जिन बच्चों के हुए हैं, कॉलेज स्कूल जाना शुरू हुए हैं नई क्लासों में, उन्होंने डेफिनेट अब नई किताबें खरीदी हैं, कापियां खरीदी हैं, अपनी नई चीजें खरीदी। ये बच्चे जो है ना जी, कुछ अरसा पहले अगर हम देखें तो किताबें बड़ी संभाल के रखते थे इस नजर से कि जब मेरी ये काम की नहीं रहेंगी या मैं जब इन किताबों का इम्तिहान दे दूंगा तो यही किताबें मैं अपने किसी कजन को या किसी दोस्त को या किसी मोहल्ले के बच्चे को आगे दे दूंगा जिसने
इसी क्लास में अगले साल आना है। बिल्कुल सही। तो हम बड़ी किताबों की केयर किया करते थे, इन पे वो अपने फुल बूटे या तस्वीरें या अपने नाम शाम या ड्राइंग नहीं थे करते, ताकि किताब साफ सुथरी रहे और अगले बच्चे के भी काम आ जाए। बल्कि खोल के नहीं देखते थे ताकि बिल्कुल ठीक रहे। हाँ जी। कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं, फिर वो आखिर उनको दानिश्वरों से इल्म हासिल करना पड़ा। बाद लोग ऐसे भी थे कि पुरानी किताब के अंदर ना जिसको दे देते थे उसे 2 दिन बाद लड़ना शुरू कर देते थे, यार मेरी किताब में 100 का नोट था वो वापस करो। यार कौन सा 100 का नोट था? नहीं, सीरियसली किताबों को संभाल के रखना चाहिए और अपने अगले दोस्त अहबाब जो है ना उनके काम आनी चाहिए। मुफ्त की नेकी है, मुफ्त की नेकी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं जिस बदतहजीबी का जिक्र करना चाहता हूँ उसका भी वक्त के साथ ताल्लुक है। पिछले दिनों मैंने जश्न आज़ादी के मौके पे ये कसीर तादाद में बदतहजीबी देखी है कि हम लोग केक काटते हैं जश्न आज़ादी की तकरीब में, उसमें पाकिस्तान का परचम या पाकिस्तान का नक्शा बनाते हैं और फिर हम उसको काटते हैं। ये सिंबॉलिकली बहुत गलत है। मेरा ख्याल है कि ये बदतहजीबी के जुमरे में आता है, इससे एतराज करना चाहिए। नक्शे को या परचम को छुरी से काटना केक के ऊपर बेशक बना हुआ है, ठीक है, वो मेरा ख्याल ठीक नहीं लगती। अच्छा, ये मैं हैरान हूं, समझदार हो गया बैठ। अच्छा, केक के हवाले से एक और छोटी सी बदतहजीबी वो ये है कि हम ये एक बाहर से जो इम्पोर्टेड कल्चर है, जिस तरह हम पे हमलावर हुआ है, उसमें हम जब सालगिरह में केक काटते हैं तो केक काटने के बाद एक दूसरे के मुंह पे केक मलते हैं। ये जिस तरह मेरा ख्याल रिस्क की तौहीन है, इससे बदतर अंदाज देखने में नहीं है। इंतहाई मैं कहता हूं कि स्टूपिड बात है ये। मैंने एक तस्वीर देखी, मैंने तुम्हें बताना भी था अखबार में, कि किसी सिपाही के मुंह के ऊपर ना कोई बेचारा ड्यूटी दे रहा था, तो वो को बच्चे शोखे से केक लेके फिर रहे थे या खा रहे थे। उन्होंने एक सिपाही जो खड़ा था उसके मुंह पे केक मार दिया। वो बेचारा उनके साथ हाथी पड़ा हुआ था। बहुत बुरी बात है। आपस में दोस्त भी हो तो ये खाने वाली चीज है, मुंह पे मल के इसको आप कौन सी अक्लमंदी का या कौन सी दोस्ती का या कौन से मॉडर्न पन का सबूत? बस वो फिल्मों में देख देख के हम भी मुतासिर हो गए कि ये पता नहीं कोई सवाब का काम समझते हैं ना, राज खान दिया मस्तियां। बिल्कुल, ये है सही तस्वीर, राज खान दिया मस्तियां। ये सारी बात है। फिल्मों में तो और भी बहुत कुछ होता है। अच्छा जी, एक और बात है ये भी जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जो अक्सर देखने में आती है। कोई दोस्त अगर हो ना जी इकट्ठे हुए तो एक बंदा अगर कह दे कि आओ यार मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अब गड्डी में तो उसके अलावा 4 सीटें होती हैं ना जी, 3 पीछे और 1 आगे। खुद बेचारे मालिक ने भी यार अंदर बैठ के गड्डी चलानी है, बोनट पे बैठ के चलानी नहीं। तो दोस्त अगर 9 खड़े हैं ना तो 9 के 9 ही बीच में घुस जाते हैं ना। वो बेचारा आगे से कहने जोगा होता है कि यार इतनी जोगी गड्डी नहीं है। वो कह दे अगर तो उसको उल्टा बातें सुननी पड़ती है। कह देते कि नहीं आ जाएंगे सारे, तो बेफिक्र रहे, तुम आ जाएंगे। हाँ, आगे से कह रहे होते हैं कि फिक्र ना करो हम बैठ जाएंगे, सेट हो जाएंगे। इंतहाई बुरी बात है। आप जिसकी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी आंखों के सामने ही आप अपनी मनमानी करें और उसकी चीज को बर्बाद करें, ये अच्छी बात नहीं है। इसी में एक और बात ही भी ये है कि अक्सर बच्चे जो होते हैं ना खलंडरे, वो शीशे की तरफ बैठना चाह रहे होते हैं। खलंडरे क्या होता जी? खलंडरे होता है जरा शौक है वध के काम करने वाले। खंड से कोई ताल्लुक नहीं है। इजाफा हुआ नॉलेज में। खलंडरे तो वो बुजुर्ग को दरमियान में बैठा देते हैं। हालांकि बुजुर्ग को कोई चाह नहीं होता खिड़की की तरफ बैठने का, मगर बुजुर्ग आदमी बेचारा बीच में बैठा हुआ में उसका साथ अंग हो रहा था। तो अगर वो चाहे बुजुर्ग कि चलो मैं इधर बैठ जाऊं, तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए गड्डी में बैठते हुए भी। अच्छा यार, एक और बदतहजीबी है गलत औकात में फोन करना और फोन अटेंड ना करने पे फिर बाद में गिला करना, वो भी बड़े शदीद अंदाज में कि तुमने मेरा फोन नहीं अटेंड किया। हाँ जी, हाँ जी। आप सोच लेते हो कि आप अगर रात 12-1 बजे तक जाग रहे हो तो बाकी दुनिया तो नहीं जाग रही, लेकिन आप फोन करते हो, नहीं अटेंड करता, अगले दिन उसको सुननी पड़ती है। एक दूसरे का शेड्यूल एक नहीं होता, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि जिस वक्त मैं जाग रहा हूँ उस वक्त बाकी दुनिया भी जाग रही है, जब मैं सो रहा हूँ तो बाकी दुनिया भी सो रही है। ये भी आपके येन में है कि मैं बजाता जाऊं पहले तो वो उठा भी लेगा, हालांकि जो अक्लमंद लोग हैं वो साइलेंट पे करके सोते हैं। और दूसरी बात है कि बार बार फोन करना,
बार बार रिंग करना, भाई जिसने उठाना है वो पहली बेल पे उठा लेगा, ज्यादा ज्यादा दूसरी बेल पे उठा लेगा, फिर यानी बकायदा जिसे कहते हैं ना दिहाड़ी लग जाना फोन पे, ये भी बदतहजीबी। अगर नहीं उठा रहा इसका मतलब है वो नहीं अटेंड कर रहा, वो अटेंड करना नहीं चाह रहा, किसी ऐसी जगह पे है, या वो बहुत ज्यादा मसरूफ है या सोया हुआ है। बदतहजीबी भी है और इसके दो नुकसान भी हैं। एक तो ज्यादा बेल देने से बिल ज्यादा आता है, दूसरा ज्यादा बेल देने से बेल सड़ भी सकती है, दूसरे की बैटरी ज्यादा यूज हो जाती है, ये भी एक नुकसान है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और सबसे बड़ा जो नुकसान है ना बार बार किसी को बेल देने का, उस बेचारे की बेइज्जती भी हो जाती है, परे से कुछ ही सारी आवाज भी आ जाती है, केड़ी मां तेन ऐसे लकड़ी कड़ी करन डई है। हाँ, हालात बड़े खराब हो गए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार मैं ये सोचता हूँ कि ये हमें तनकीद की बड़ी सख्त आदत पड़ गई है, पता नहीं ये मीडिया से पड़ गई है या क्या चक्कर है। हम लोग बड़ी तनकीद करते हैं एक दूसरे पे और मनफी तनकीद फिर करते हैं। दुख इस बात का है मुझे कि हर वक्त हम दूसरे से कीड़े निकालने के चक्कर में ही रहते हैं, और कोई बात हो, कोई मसला हो, कोई गुफ्तगू हो, फौरन हम शुरू हो जाते हैं एक दूसरे की बुराइयां करने और उसके अंदर से हम नुक्स निकालने शुरू हो जाते हैं। इवन ये बच्चों में बड़ी आदत पड़ गई हुई है। हाँ जी। बच्चे जो है ना जी घरों में, वो बहन भाई एक दूसरे पर तनकीद खा करते रहते हैं। बिल्कुल। एक बच्चा अगर दूसरे को कह देना कि यार ये पानी तो पिलाना, वो आगे से कह दे वाह जी वाह पानी तो पिलाना, उस दिन तुमने चटनी में से मुझे पकौड़े का डोबा दिया था। किसी बहन को कह दे जाओ पानी पिलाया, मैं पिला दूं। मैं अम्मी ने जब कहा था कि जाओ पिंकी को समोसा दे के आओ, तो तुम रास्ते में ही सारे समोसे में से आलू निकाल के खा गए थे। मैंने नहीं पिलाना था। यार तुम पिला दो। मैं क्यों पिला दूं? उस दिन मैं तुम्हारे बूट पहन के फुटबॉल खेलने गया था, तुमने मुझे मारा नहीं था। बकायदा हमने एक दूसरे के लिए शिकायतें अपने दिल में जमा की होती है कि कहीं पे मौका मिलेगा तो फाइट करेंगे। मोहब्बत, प्यार, सलूक, एक दूसरे के साथ हमदर्दी बिल्कुल ही खत्म होती जा रही। बहुत अच्छा मौसम है आज, मंगाओ जी जुनैद साहब पकौड़े, साथ नान भी हो जाए। लो एवं अफसर बने जुनैद साहब ने चलो टाई लाई, अफसर ने एने का वास्ते लाई जी। यार इसने अपने पे ड्राइवर रखा हुआ है, गड्डी शड्डी तो इसकी है नहीं, ड्राइवर इसको टाई से पकड़ के लेके आता है यहाँ। खबर क्या है जी? जी सुने, साबिक गवर्नर पंजाब और अयान अली के वकील लतीफ खोसा कहते हैं कि वजीर दाखिला चौधरी निसार को करप्शन में मुलव्वस सिर्फ डॉक्टर आसिम और अयान अली ही नजर आते हैं। खोसा साहब यही बात अगर अगले पूछ लेंगे, भाई जी आपको पूरे मुल्क में ये दो ही मासूम नजर आते हैं, क्योंकि पिछले को मेरा हाल है 1.5 साल से आप सिर्फ इन दो को ही मासूम साबित करने के ऊपर तुले हुए हैं। खोसा साहब के अपने चैम्बर में पिछले कई महीने से सिर्फ एक ही केस है, वो अयान अली का। पूरे तन मन धन से उसकी वकालत कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक ही केस है और ये खुद भी सिर्फ यही केस करना चाहते हैं। मुझे ये है कि फिर दूसरा केस इनका अपना ना चैम्बर में बढ़ जाए, इसलिए एहतियात करें खोसा साहब। हमारी कफगीर या हथाला पखा नहीं पकड़ती खवाती, क्योंकि किचन में छुरी बुगदा भी पड़ा होता है, फिर जो सारी रात दरख्त पे चढ़ के बैठे रहेंगे। ना माफ करे, आजकल तो हालात ऐसे हैं ना, किसी बंदे की तरफ हाथ करके कह दो ना कि ये बच्चा उठाने लगा था, सारा बाजार मारने लगता उसको। अल्लाह माफ करे खोसा साहब, टेक केयर प्लीज। जी सुने, मुशीरे इतलात सिंध मौला बख्श चांडियो ने कहा है कि बिलावल भुट्टो 14वीं का चांद है, आइंदा मुल्क की कयादत वही करेंगे। वाह जी वाह, यानी बिलावल साहब 14वीं का चांद है। इनके अब्बा जी को मिलने के लिए तो दुबई जाना पड़ता है ना, इनको मिलने के लिए अब चांद गाड़ी की टिकट लेनी पड़ा। और अगर बिलावल साहब की हुकूमत आ गई तो आवाम हर दूसरे दिन कहा करेगी यार वजीर आज़म के बदल आ गए। और इस वजीर आज़म को मिलने के लिए इनके पीए से नहीं, मुफ्ती मुनीब से टाइम लेना पड़ा। मुफ्ती साहब से जाके कहेंगे गाही हो रही है ना, दूरबीन च वेख के वजीर आज़म को टाइम ले दिया। हद हो गई है चांडियो साहब, वो बाहर से इंग्लिश मुल्कों से पढ़ के आया है बच्चा, और तारीफ आप उसकी मासी के पुत्र वाली कर रहे हैं। 14वीं का चांद, आप या इंग्लिश में ही कह दें कि मून ऑफ 14 है ये।
लोग कहा करेंगे यार बड़ी अंधेरी रात है आज, वजीर आजम साहब गैर मुल्की दौरे पे गए हैं। इस्लामाबाद में वजीर आजम कोई और होगा, पेशावर में मुफ्ती पोपल से ही अपना वजीर आजम दिया करेगा। अब बिल्कुल ठीक है, फिर झगड़ा शुरू हो जाना है। पहले ही बड़ी मुश्किल से इस साल कट्ठी ईद। बिलावल साहब एक दिन के लिए वजीर आजम बनेंगे। क्यों जी? 14वीं का रात एक दिन के लिए। जी खबर सुने, रूस के एक गांव में हर साल मच्छर मेला लगता है। जिसको सबसे ज्यादा मच्छर काटे उसे सबसे बड़ा इनाम मिलता है। क्यों जी? अब सुनाओ, अब ये जो डींगी पे अरबों रुपया लगा रहा है पाकिस्तान, ये मुहैया लगना शुरू हो गया कि नहीं? रूस ने उधर मच्छरों का मेला लगवा लिया और जिसको ज्यादा मच्छर लड़े उसको इनाम देते हैं। गौरी साहब, सबसे बड़ा यूरे वाला फौरन मास्को शिफ्ट हो। आपको तो देख के तो मच्छर लड़ेंगे भी और साथ तमाले भी डालेंगे। बल्कि साथ शोर मचा के कहेंगे कि जल्दी आ जाओ, नया फ्लेवर आया है। देखो ना जरा यार, हैरान कुन बात है ना कि हम इस काम के ऊपर अरबों रुपया लगा रहे हैं कि मच्छर खत्म हो जाए। उनके यहाँ जो मच्छर है उन्होंने उसको इनकम का जरिया बना लिया। क्या बात? मेले लगाने शुरू कर दी। जाहिर है उधर मेले पे बड़ी इनकम होगी और मच्छर बुलाने के लिए उधर वो काफी रेडियां भी लगवाते हो। मगर मैं यार इस बात पे हैरान हूं कि वो तो इनाम हासिल करने के लिए फिर तड़ातड़ मच्छर लड़वाते हैं अपने आप को। तो मच्छर लड़ने से तो बंदा बीमार हो जाता है। ये रूस के मच्छरों ने अपने डांग डॉक्टर अस्पताल से परवाए होते हैं, जो लोग खुशी से कटवा रहे होते हैं उनसे। अजीजी वो अमीर मुल्क है, मम्मी डैडी मच्छर होंगे, उन्होंने लड़के किसी को क्या करना है? सिर्फ हमारे ही मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता, पूरी दुनिया के मच्छर किलर होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इंसान को मारने से उतनी अमवात नहीं होती जितना मच्छरों के इंसान को काटने से होती। अल्लाह माफ करे। और ज्यादा खतरनाक बात यह है कि आज तक किसी मच्छर को फांसी भी नहीं हुई। नाज़रीन, ये था आज का अस्बहाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।